السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہم میرے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جرنلسٹ اور نامی گرامی جرنلسٹ متی اللہ جان صاحب ہیں، محمد ریاض صاحب ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہیں آج گپ شپ میں ہی کچھ ہم گپ شپ کر لیں، کچھ سیاسی ایشوز پہ بات کر لیں. تو اچھا موقع ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. متی اللہ، کیسے ہیں آپ؟ بس شکریہ، تھینک یو. میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے نا کووڈ-19 میں بہت زیادہ ایکسٹرا پریونٹیو میجر لے رہے ہیں. نہیں، بس احتیاط تو کرنی چاہیے، اور یہ صرف آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے، آپ کے گھر والے، آپ کے دوستوں کی زندگی بھی آپ کی عادات اور آپ کے اعتبار پر ڈپینڈ کرتی ہے. اچھا متی اللہ، آج کل پولیٹیکل ٹیمپریچر کوئی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے. اور دوسری جانب کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں خواجہ آصف کو بھی گرفتار کیا. لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ مثبت سیاست، مثبت اپوزیشن، تو مثبت صحافت بھی ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ آج کل جب سے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے اور یہ پچھلے 2-3 مہینوں سے جب یہ پی ڈی ایم جو 11 جماعتوں کے الائنس میں حکومت گرانے کے لیے یہ جو شروع کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے کچھ میڈیاز میں، خاص کر ٹیلی ویژن میں جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کوئی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں ایز اے پازیٹیو جرنلسٹ، ایک پازیٹیو جرنلزم ہمیں مثبت صحافت کتنی کرنی چاہیے اس سلسلے میں؟ سہیل خان، معلوم نہیں آپ مثبت صحافت کس کو کہتے ہیں، مگر میرے خیال میں مثبت صحافت وہ ہوتی ہے کہ آپ جو حقائق ہیں ان کو بیان کریں، وہ مثبت صحافت ہے. نہ کہ یہ کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ یار کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو یہ کوئی مثبت صحافت نہیں ہے. مثبت صحافت ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کے تناظر میں جو معاملات ہو رہے ہیں، رپورٹر عوام کو یہ بتائے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، قانونی ماہرین اس پہ کیا کہتے ہیں، آئین کے کیا تقاضے ہیں. اور اگر کوئی بات کرتا ہے کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مثبت صحافت ہے. اور تجزیہ کاروں کو اور صحافیوں کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیونکہ عام آدمی آپ کی طرح اور میری طرح تعلیم یافتہ نہیں ہوتا جس نے باہر سے جا کے ڈگریاں لی ہوتی ہیں. تو ان کو بڑے سادہ الفاظ میں اور بڑا ڈائریکٹ انداز میں عوام کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے ملک میں اور کیا صحیح ہو رہا ہے. مثبت صحافت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حکومت بھی ٹھیک ہے، اپوزیشن بھی ٹھیک ہے، فوج بھی ٹھیک کر رہی ہے، عدلیہ بھی ٹھیک کر رہی ہے، سب ٹھیک کر رہے ہیں اور میں بھی مثبت صحافی ہوں تو میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. تو یہ کوئی مثبت صحافت نہیں ہوتی. نہیں، مثبت صحافت سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹی وی چینلز میں کچھ وہ اینکرز ایسے سوالات کرتے ہیں یا جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں. میں اس سلسلے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، حکومت کا ساتھ دیتے ہیں یا اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ آپ جب صحیح بات کرتے ہیں نا تو وہ کسی کے فائدے میں جاتی ہے، کسی کے نقصان میں جاتی ہے. مگر آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی گروپ کے حق میں جو باتیں وہ کرتے ہیں، جو اس کے خلاف ہیں وہ نہیں کرتے. یہ بات آپ کی صحیح ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حقائق بیان کریں. مگر اگر آپ ٹی وی چینل کی مثال دے رہے ہیں تو ٹی وی چینل پہ آج کل لوگ رہ کون سے گئے، مجھے یہ بتائیں صحافی کتنے لوگ ہیں، اور ان کا سروائیول جو ہے، ان کی جاب جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے جو بقول آپ کے مثبت صحافت کے اوپر. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ مثبت صحافت کر رہے ہیں، اور جو ابھی ٹی وی چینل سے نکال دیے گئے ہیں یا ان کے انٹرویو نہیں چلائے جا سکتے، ان کے تجزیے نہیں دکھائے جا سکتے، وہ ریاست مخالف ہیں، فوج مخالف ہیں، ملک کے دشمن ہیں، غدار ہیں، کافر ہیں، اور ہر وہ چیز ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز بھی اب وہ صحافت نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے، اور ہماری بدقسمتی سے جو حکومت ہے وہ بھی وہ حکومت نہیں کر رہی جو انہیں کرنی چاہیے. یہ صحافت کا کام، سیاست کا کام اور حکومت کا کام آج کل صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مثبت صحافت ہونی چاہیے، اور مثبت سے مراد یہی ہے کہ سب اچھا ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سب اچھا ہوتا تو آج عوام کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا جو آج انہیں فیس کرنا پڑ رہا ہے.
वो महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में। तो अगर सब कुछ अच्छा ही होता है तो फिर वो मेरे ख़्याल में सब कुछ होता है मगर वो मस्बत साफ़त नहीं होती है। और वो मैं तो कहूँगा कि वो पब्लिक रिलेशनिंग तो होती है, वो एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज तो हो सकती है, वो किसी शख्सियत की या हुकूमत की पब्लिसिटी या उसके इश्तिहारबाजी तो हो सकती है, मगर वो मस्बत सहाफ़त नहीं हो सकती। इसमें अच्छा मतीउल्ला, आपने कहा कि महंगाई के हवाले से, तो रियाज साहब ये जो मतीउल्ला साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल कर रहा था, जिस तरह उन्होंने कहा कि महंगाई है और ये जो हालात हो रहे हैं, तो क्या अब आप समझते हैं कि ये जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, जो कि 11 जमातों की जो अलायंस है, ये जो इस हुकूमत को गिराने के लिए और इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, इस हुकूमत पर खात्मा करने के लिए दरपे है और ये खड़ी निकल आई हुई है, और जिस तरह मतीउल्ला ने बात कहा कि महंगाई है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जब जलसे करते हैं तो ये तो हुकूमत को और आवाम के दर तक कोई नहीं करती, ये तो अपने वो जो हुकूमत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करती है उनके जवाब देते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं थोड़ा सा आऊँगा, जब आपने मस्बत रिपोर्टिंग की तो मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा। पिछले दिनों क्लिप था और बड़ा वायरल हुआ। मेहदी हसन बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अल जज़ीरा में काम करते रहे, अब एक पीकॉक TV में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी। कहते हैं कि एक शख्स कह रहा है, A कह रहा है कि बारिश हो रही है और B कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही। तो कहते हैं एक जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि वो A को कोट करे कि बारिश हो रही है और B को कोट करे कि बारिश नहीं हो रही। एक जर्नलिस्ट का काम ये है कि बाहर जाए और वक्त लगाए और खिड़की खोले, देखे कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। तो जो फैक्ट चेकिंग, जिसे आजकल फैक्ट चेकिंग का दौर है कि एक स्टेटमेंट आ रही है कि महंगाई हो रही है कि नहीं हो रही, दूसरी तरफ क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, हुकूमत ये कह रही है, अपोजिशन ये कह रही है। आप आराम से जाके फिगर्स देखें, स्टेट बैंक के हो गए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हो गए, हमारे सामने सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम, और दूसरी तरफ एक बात की जाती है अगेन, वो है जी बैलेंस रिपोर्टिंग। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई बैलेंस रिपोर्टिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग होती है फैक्चुअल, जो कुछ हो रहा है उसको आपने रिपोर्ट करना है। बैलेंस का मतलब ये है कि आप बैलेंस की कोशिश कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग ये है कि जो कुछ हो रहा है, आपने अंग्रेज़ी में कहते हैं यू हैव टू शो पीपल, यू डोंट हैव टू टेल पीपल। तो हम जर्नलिस्टों ने लोगों को बताना शुरू कर दिया, दिखाने के बजाय। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, आपने PDM की बात की, अब उस तरफ आते हैं तो बड़ी सादा सी बात है कि आप चले जाएं, आदाद शुमार उठा के देख लें, वो आपको बता देंगे कि क्या हुकूमत के ये जो आए दिन PID में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें हमें पता चल जाएगा जो दावे हैं और जो हमारे सामने जो तस्वीर है आदाद शुमार की, वो साफ क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कम हो रही हैं और नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो थोड़ा सा अपोजिशन जो है उस मामले को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रही, और उनको चाहिए कि मज़ीद फैक्ट्स अच्छे तरीके से लाएं। ज़ाहिर है उसमें कुछ पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट हैं, वो नहीं है, वो बिलावल और दूसरे मामलात हमारे सामने आ गए। तो इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखने का, और मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे अंदाज में हम देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे, और फैक्चुअल रिपोर्टिंग शायद अब वो मिस हो रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा मतीउल्ला, ये अपोजिशन जो अब रोल प्ले कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ठीक है, ये अब जिस तरह आपने कहा और आप पूरे आवाम को हमको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई इस मुल्क में, लेकिन ये है कि अगर ये PDM, आपको तो ये भी पता है कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं गिराई जाती। कौन सी हुकूमत जलसे जुलूस से होती थी? इमरान खान साहब ने जो 126 दिन धरना दिया था, क्या उसी पे हुकूमत चली गई थी? एक टाइम आया, टाइम पूरा हो गया, इलेक्शन हो गए, तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये हुकूमत जल्दी फारिग हो भी गई, ये कामयाब हो गए, तो क्या दूध की नहरें जल्द बहना शुरू हो जाएंगी? देखें, इमरान खान के धरना जो था वो कोई सियासी धरना तो नहीं था या जलसा जुलूस तो नहीं था कि जिसकी नाकामी की मिसाल दे के आप ये साबित करने की कोशिश करें कि जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। इमरान खान का धरना तो सबको पता है वो एक साजिश थी। उस वक्त के फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर अफसरान एहलकार जो थे वो उसमें मुलव्वस थे, और बाद में जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो इमरान खान के धरने की तो मिसाल आप ना दें। जलसे जुलूसों से बिल्कुल हुकूमत गिराई जा सकती है। जलसे जुलूस करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अवाम जो है अगर जलसे जुलूस भी नहीं करेगी तो क्या करेगी? घर पे बैठ के वो गाने सुनेगी, TV पे बैठ के, चैनलों पे बैठ के, और उन तज्जियों को सुनेगी कि जो कि हुकूमती तज्जियाकार बैठ के उधर कर रहे हैं। अवाम के पास आखिरी रास्ता सड़क ही होता है, जलसे जुलूस ही होते हैं, और ये एक जमहूरी अमल है। जलसे जुलूस कोई बुरी बात तो नहीं है। एक तो हमने जलसे जुलूसों को और सियासत को और सियासतदानों को और पार्लियामेंट को इतना बदनाम कर दिया है कि ये करप्ट हैं, ये खाते हैं, ये कमज़ोर हैं, ये बुज़दिल हैं, कि अब हमें जलसे जुलूस भी बुरे लगना शुरू हो गए। बिल्कुल हुकूमतें गिराई जा सकती हैं जलसे जुलूसों से,
यहाँ पे 20,000 बंदा आके बैठ गया। खुद इमरान खान ने कहा था अगर 20,000 बंदा निकल आए तो जो मक़तदर क़ुव्वत है उनकी पतलूनें गीली हो जाती है। खुद इमरान खान ने ये कई वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी। कुछ जलसे जुलूस निकालना कोई बुरी बात नहीं है, और जलसे जुलूसों से ही हुकूमत में तब्दीली लाई जा सकती है। यही एक जमहूरी अमल है, जमहूरी तरीका है, मगर उन जलसे जुलूसों के पीछे कोई फौजी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। मतीउल्लाह, एक मिनट, आपने कहा जमहूरी अमल है, तो अगर जमहूरियत की बात कर ली जाए तो क्या इन पार्टियों में जमहूरियत है? अब तक मोरूसी सियासत चलती आ रही है, क्या ये जमहूरियत पर मबनी है ये तमाम सियासी पार्टियाँ? दूसरे जो अब ये कर रहे हैं ना कि कुर्बानी मांगती है ना, तो ये कहते हैं कि हम इस्तीफ़े देंगे, ठीक है ना, कोई इस्तीफ़े नहीं दे रहा। कल जो है ना पीपल्स पार्टी का भी अभी तक उसका कोई नहीं आया हुआ, मुस्लिम लीग नून का भी आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा है, तो ये भी तो आवाम के लिए, आवाम के दुख दर्द के लिए सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं। ये जब भी जलसों में जाते हैं ये तो हुकूमत के वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनके जवाबात देते हैं, आवाम के दुख दर्द के लिए ये क्या करते हैं? देखिए, ये जो सियासी जमातें हैं इनमें जमहूरियत यकीनी तौर पे नहीं है, और इसकी वजह भी आपको पता है। हमारी तारीख में जो पार्टियां हैं वो फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट बनाती रही है और तोड़ती रही है, ठीक है। ये जो फैक्शन और धड़ेबाजी हमारी मुल्क की सियासी तारीख में होती रही है, उसके पीछे फ़ौज और खुफिया अदारों का हाथ है। ये IGI और ये नवाज शरीफ साहब को सियासत में कौन लाया, ठीक है। भुट्टो को देखें ना किन हालात में है। जब मुल्क में 36 साल फ़ौज की हुकूमत रही होगी तो वहाँ पे किस किस्म की सियासी जमातों की आप तवक्को करते हैं? फिर तो वही स्टंटेड ग्रोथ होगी ना हमारी सियासी जमातों की भी, वही स्टंटेड ग्रोथ जो है गरीब मुल्क में गरीब बच्चों की होती है, जिसके एक्सरे दिखा दिखा के इमरान खान हुकूमत में आ गए हैं। और अब उसी जमहूरी निज़ाम की इमरान खान जैसी हुकूमत जो है वो स्टंटेड ग्रोथ चाह रही है। पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ भी, सियासत के ख़िलाफ़ भी बदनाम करते हैं इन इदारों को, आइन के इदारों को, ताकि जो है वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए आराम बार की जा सके। तो सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्योंकि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है तो फिर आप किसी फौजी हुक्मरान को सर पे आके बैठा दें, इसका ये मतलब है। अगर उनमें जमहूरियत नहीं है तो उनके ऊपर तनकीद होगी, मीडिया करेगी, अदालतें उनके खिलाफ फैसले देंगी, लेकिन फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो सियासी इंजीनियरिंग करे और लोगों को बताए कि ये सियासी जमातें ऐसी है, ये सियासतदान ऐसा है, ये वैसा है। अपने काम से काम रखें, ये अवाम जाने, मीडिया जाने, अदालतें जाने, इन सियासी जमातों को हम सीधा कर लेंगे, लेकिन हमें कोई मौका तो दे ना। हम वोट के ज़रिए इन सियासी जमातों को जमहूरियत बनाएंगे, हम इनका गिरबान पकड़ेंगे, हम हैं ना। तो ये कह देना कि क्योंकि सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है तो इसलिए फ़ौजी हुक्मरान मुशर्रफ अच्छा है, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जो है वो उसमें इंसाफ नहीं है तो इसलिए कोई दूसरा मुल्क आके इधर बैठ जाए। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? अपने मुल्क को अफ़गानिस्तान बनाना चाह रहे हैं? नहीं तो ये ठीक है, जमहूरियत आप खुद कह रहे हैं कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, लेकिन जब ये मोरूसी सियासत चलती आ रही है और आप कह रहे हैं ना कि आप मतलब अगर लेट्स सपोज अगर हम पब्लिक के लिए कर लें तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं इसमें जितने बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं उनको क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है? मोरूसी सियासत को क्यों फ़रोग़ दिया जा रहा है? आपके अवाम निकलते ही चंद शख्सियात के लिए हैं, तो ये जो है ना कि मोरूसी सियासत ये भी एक हथियार है फौजी इस्टेब्लिशमेंट का, कि उन्हें पता है कि जब पार्टियों के अंदर ऐसे लोग आ जाएंगे जिनके पीछे अवाम नहीं निकल रहे तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। तो इस वक्त जो इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला वो ही मोरूसी सियासत के ज़रिए कर सकते हैं। जो कुछ इन्होंने भुट्टो के साथ किया, उसका कत्ल करके, अदालती कत्ल करवा के, उसके बाद भुट्टो की बेटी इनका मुकाबला कर सकती थी। जो कुछ अब नवाज शरीफ के साथ हो रहा है उसके बाद नवाज शरीफ की बेटी इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकती है। आप तो यूरोप और अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ मोरूसी सियासत नहीं है। यूरोप और अमेरिका में कितनी बार मार्शल लॉ लगा है फौज का। तो जिन कुव्वतों से हमारा मुकाबला है फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, उनका मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ यही ख़ानदान ही कर सकते हैं बदकिस्मती से। और जब ये मुकाबला हो जाएगा, जब फ़ौज को वापस बैरकों में भेज दिया जाएगा तो उसके बाद हम जाने और ये सियासतदान जाने, उसके बाद सियासी जमातों के अंदर दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा और यकीनी तौर पर मिलना चाहिए। अल्टीमेटली यही होना चाहिए। मगर इस वक्त हमारा जिन कुव्वतों के साथ मुकाबला है उनका मुकाबला यही मोरूसी सियासत ही कर सकती है। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान, रियाज साहब। नाज़रीन, अब हमारे अगर इसको हम सम अप करें तो ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमें करना चाहिए। चाहे अगर अपोजिशन कर रही है उनको मज़बूत सियासत करनी चाहिए और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि मुल्क में जो बेरोज़गारी है, मुल्क में जो महंगाई है, इस पर तरजीह बुनियादों पर सोचना जाए ताकि आवाम के लिए कुछ बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएँ, ताकि ये मौजूदा जो कि सियासी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ये ख़त्म हो और इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम किए जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।